Good morning, my dear student. Today we are going to start your class 11th history, chapter 11, Path to Modernization. My dear, in this chapter, today we will try to understand about the condition of China. My dear, the starting of this chapter, it was discussed by me, the China and the Japan, their demography. It was also discussed by me that China and Japan both are totally different demography. China was the continental country, but Japan was the group of the islands. Japan, their demography was totally critical. There are so many the volcanoes and the lot of earthquakes that was day by day disturb the common life of the Japan. But in China, their demography was very vast. Even it was also discussed by me that what happened in China and what happened in Japan, how Japan became the imperial power, how Japan became the developed country, the how Japan became the economical power, and China was gradually it became. My dear, it was discussed by me. There is no need to explain about the Japanese condition. Today, we are going to discuss China and Chinese history. My dear, China, the modern history of China has revolved around the questions of how to reign sovereignty in the humiliations of foreign occupation and bring about the equality and the development. Chinese debates were marked by the views of three groups: the early reformers, such as Kang Yuwei 1858 to 1927, or Liang Qichao 1873 to 1929, tried to use the traditional ideas in a new and a different way to meet the challenge posed by the West's second Republican revolutionaries, such as Sun Yat-sen, the first president of the republic, were inspired by the ideas from Japan and the West. The third, the Communist Party of China, CCP, wanted to end age-old inequalities and drive out the foreigners. My dear, this is a very, very interesting and important paragraph. In this paragraph, in this topic, we are going to read the development of China and the role of the reformers and the political leaders in the development of China. Here, author clearly inform you about the two the philosophers Liang Qichao and Yang कांग युवेई. ऑथर कहता है कि चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, अपनी सॉवरेंटी को एक बार फिर से प्राप्त करने के लिए, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने वाले सवालों के चारों ओर ये चैप्टर ये टॉपिक घूमता है. चीन की डेली जो डिबेट और जो बहस हो रही थी उसमें तीन समूहों के नजरिए झलकते हैं. देयर आर थ्री ग्रुप्स who felt that how Chin became prosperous. What was their thought? कहता है कांग योवेल और लियांग किचाओ, कांग योवेई और कांग योवेल एंड लियांग किचाओ जैसे प्रारंभिक सुधारकों ने पश्चिम में जो चुनौतियों का सामना कर पश्चिमी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी को नए और अलग तरीके से प्रयोग करने की कोशिश की. इसमें लियांग किचाओ और कांग योवेल ने ये बताया कि हम जब तक अपने जो पारंपरिक हमारी जो आइडियोलॉजी हैं, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत में मिले गुण हैं, यदि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे और सिर्फ हम अंधाधुंध पश्चिमी संस्कृति का फॉलो करेंगे तो हम कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते. इस बात पे बड़ा बल दिया दो विद्वानों ने, फिलासफरों ने, कांग योवेल और लियांग किचाओ ने. दूसरी जो आइडियोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग रिपब्लिक के पहले अध्यक्ष, चाइनीज रिपब्लिक के पहले प्रेसिडेंट सन यात सेन जैसे क्रांतिकारी विचारक का नाम आता है. सन यात सेन का मानना था कि जापान और पश्चिम के विचारों से
हमें अपने देश को विकसित बनाने में सहायता मिलेगी। कहता है सेकेंड रिपब्लिकन रिवोल्यूशनरीज सच एज सन यात सेन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट of the republic were inspired by the ideas from Japan and the West, और जापान और पश्चिम के विचारों से बहुत प्रभावित थे सन्यास सेन, और उनका मानना था कि चीन का विकास हमें उन विचारों को अपनाकर ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, हम अपने देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। And third, the Communist Party of China (CCP) wanted to end age-old inequalities and derive out the foreigners। कहता है कि जो तीसरी विचारधारा है उसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा है। उनका मानना था कि जब तक हम अपने देश से विदेशियों को निकाल के नहीं फेंक देंगे, जब तक हम अपने देश से विदेशी शक्तियों का अंत नहीं करेंगे, चीन का विकास नहीं हो सकता। कहता है द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न चाइना कैन बी ट्रेस्ड टू इट्स फर्स्ट इनकाउंटर्स विद द वेस्ट in 16th and 17th centuries when Jesuit missionaries introduced Western science such as astronomy and mathematics. Limited though its immediate impact was, it set in motion events that gathered the momentum in the 19th century when Britain used force to expand the lucrative trade in opium, leading to the first opium war 1839 to 48. This undermined the ruling Qing dynasty and strengthened the demand of the foreign and change. My dear, this is very clear. कहता है कि शुरुआती दशकों में बदलाव कैसे हो गए। कहता है इन द स्टार्टिंग पीरियड, आधुनिक चीन की शुरुआत 16th सेंचुरी और 16 और 17th सेंचुरी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जाती है। चीन का विकास कब से माना जाएगा? तो कहता है 16th-17th सेंचुरी में हम चीन के विकास को मान सकते हैं कि चीन का विकास शुरू हुआ 16वीं-17वीं सदी में, जब चीन पश्चिम से इंटरेक्ट हुआ, पश्चिमी शक्तियों से मिला। पहली बार चीन का पश्चिमी शक्तियों से इंटरेक्शन कब हुआ, आमना सामना कब हुआ? तो कहता है कि जेसुइट मिशनरियों ने जो चीन आए, उन लोगों ने अपने साथ पश्चिम की बहुत सारी विद्याएं जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहाँ पहुँचाया। इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने चीन के ऊपर पश्चिमी विज्ञानों का प्रभाव स्थापित करने में बहुत मदद दी। उन्होंने 19th सेंचुरी में जाकर अपने इस जो आइडियोलॉजी थी, जो पश्चिम का विज्ञान था, उसको बहुत तेज़ी से चीन के लोगों ने अडॉप्ट किया। जब ब्रिटेन ने अफीम के फ़ायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए, ओपियम के जो फ़ायदे थे उसको बढ़ाने के लिए अपने इंपीरियल पावर, अपनी सेना का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। इसी के चलते चीन में पहला ओपियम वार हुआ। पहला ओपियम वार चीन में कब हुआ? कहता है 1839 to 48, दैट वाज द फर्स्ट ओपियम वार हैपेंड। और यहीं पे इसी ओपियम वार के बाद दिस अंडरमाइन द रूलिंग क्विंग डायनेस्टी एंड स्ट्रेंथेंड डिमांड फॉर द रिफॉर्म ऑफ चेंज। इससे, इस ओपियम वार से जो वहाँ पे सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमज़ोर कर दिया, और फिर लोगों के मन में सुधार और बदलाव की मांग को बल मिला, उसको तेजी मिली। कांग यूवेई और लियांग किचाओ, ये दो जो लोग थे, माय डियर, आफ्टर ओपियम वार द किंग डायनेस्टी दैट इज कंप्लीटली डिराइव कमजोर हो गई और लोगों के मन में सुधार तथा बदलाव की मांग होने लगी। चीन को शक्तिशाली बनाने के लिए, चीन को मजबूत बनाने के लिए अब लोगों के मन में विचार आने लगे। दिस पिक्चर दैट इज एक्सप्लेन द ओपियम ट्रेड। आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में अफीम का व्यापार के बारे में दिखाया गया है। क्लियरली एक्सप्लेन दैट कि चीन
जो चीन के उत्पाद थे, चीन के प्रोडक्शंस थे, द डिमांड फॉर द चाइनीज गुड्स सच एज टी, सिल्क एंड द प्रोसिलियन created a serious balance of trade problem. Western goods did not find a market in China, so payment had to be in silver. The East India Company found a new option, opium, which grew in India. They sold the opium in China and gave the silver that they earned to company against the canton in return for letters to credit. The company used the silver to buy tea, silk and porcelain to sell the Britain. This was the triangular trade between Britain, India and China. My dear, this is the cunningness of the East India Company. They use the Indian opium for trade in China. My dear, चीनी उत्पाद जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन, प्रोसेलियन, जो चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन की मांग व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी थी, क्योंकि ब्रिटेन को इन उत्पादों को खरीदने के लिए चांदी में कीमत अदा करनी पड़ती थी, भुगतान करना पड़ता था। एक बड़ी असंतुलन की स्थिति पैदा कर दी। जो वेस्ट के जो प्रोडक्शन थे, जो वेस्ट का उत्पाद था, को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा। यह विकल्प क्या था कि चांदी उसको खर्च ना करनी पड़े, और यह विकल्प था ओपियम, अफीम। ओपियम हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए चीन में उन्होंने भारत की जो ओपियम थी उसको उन्होंने चीन से वस्तुओं को खरीदने पे खर्च किया। अब उन्हें चीन से सामानों को खरीदने में चांदी खर्च नहीं करनी पड़ती थी। चांदी की जगह वो ओपियम में वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिए। वे चांदी कमाकर, इट मीन्स अब वो क्या कर रहे थे, अफीम या हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उग जाती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए उन्होंने खूब चांदी इकट्ठा किया। ये चांदी कमाकर कैंटन में जो उधार पत्र के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का प्रयोग ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन भारत और चीन के बीच ये ट्रायंगुलर ट्रेड शुरू हो गया। माय डियर, व्हाट आई एम टेलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। द ओपियम विच ग्रू इन इंडिया, दे सोल्ड द ओपियम इन चाइना एंड गेव द सिल्वर दैट दे अर्न टू कंपनी एजेंट्स इन कैंटन in return for letters to credit. The company used the silver to buy tea, silk and porcelain to sell in Britain. This was a triangular trade between Britain, India and China. Okay, let us come and try to understand the paragraph which is given in your book. My dear, I have already informed that the first opium war, which happened 1839 to 1942, this opium war changed the political and the economical condition of China. The demand of the Chinese people, they felt that we have to change our political and the economical system. They asked for change, and Kang Yue, Liang Qichao realized the need to strengthen the system and initiated the policies to build a modern administrative system, a new army and an educational system, and set up local assemblies to establish the continuously establish the constitutional government. They saw the need to protect China from colonization. कांग युवे और लियांग किचाओ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की।
और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई। साथ ही संवैधानिक सरकारों की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का गठन किया। उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत भी महसूस की। चीन कहीं विदेशी शक्तियों का अड्डा न बन जाए, कहीं चीन को उपनिवेश न बना ले, इससे बचाने के लिए कांग यूएई और लियांग किचाओ ने लोगों के बीच अवेयरनेस भी बनाया। उन लोगों ने आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और मिलिट्री एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात कही। उन्होंने जो लोकल कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटअप था उसको डेवलप करने की बात कही। माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग। द negative example of the colonized countries worked powerfully on Chinese thinker. The partition of Poland in 18th century was a much discussed example. उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीन के विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 18th सेंचुरी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था। यहाँ तक कि 1890 के डिकेड्स में पोलैंड शब्द का प्रयोग किया गया। पोलैंड शब्द का प्रयोग एक विशेष वर्ब के रूप में किया जाने लगा, वोलान यू। वोलान यू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए। वोलान यू का मतलब हमें पोलैंड करने के लिए। भारत का उदाहरण भी सामने था। विचारक लियांग किचाओ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। 1903 में उन्होंने लिखा, भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश से नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों हार गया, बर्बाद हो गया, और वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। Who believed in 1903 the thinker Liang Qichao, who believed that only by making people aware that China was a nation would they be able to resist the West, wrote that India was country that was destroyed by non-country that is the East India Company. वो एक कंपनी के हाथ, भारत एक कंपनी के हाथों बर्बाद हुआ, न कि किसी देश के हाथों। ये बात लियांग किचाओ कह के अपने लोगों के में अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे थे। He criticized Indians for being cruel to their own people and the subservient to the British. Such argument carried a powerful appeal as ordinary the Chinese could see that the British used Indian soldiers in their wars on China. My dear, this is the very important things. इसीलिए लियांग किचाओ इस बात की आलोचना करते हैं कि भारत एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ हार गया। भारत के लोग, कहता है वो ब्रिटेन की ताबेदारी करने के लिए, अपने लोगों के साथ ब्रिटेन को खुशामद करने के लिए, ब्रिटेन को प्रसन्न करने के लिए भारतीय लोग अपने लोगों के साथ क्रूरतम व्यवहार कर रहे थे, जिसकी लियांग किचाओ तीखी आलोचना करते हैं। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटेन चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का प्रयोग करता था। चीन को हराने के लिए ब्रिटेन भारतीय सेना का प्रयोग करता था। इसीलिए भारतीय सेना के प्रति उन्होंने ऐसा सोचा कि भारत के लोग बड़े ही निर्दयी हैं, बड़े क्रूएल हैं, क्योंकि वो लोग अपने ही लोगों को मारते हैं, क्योंकि वो लोग एक कंपनी की ताबेदारी करते हैं, एक कंपनी की हजामत करते हैं, एक कंपनी की तरफदारी करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं। ये बातें वो कहते हैं। Above all, many felt that traditional way to thinking had to be changed. The Confucianism developed from the teaching of the Confucius 551 to 579 BC, and his disciples was concerned with good conduct, practical wisdom, and proper social relationship.
कहता है कि इन सबसे अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की जरूरत है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस 551 to 479 BCE और उनके फॉलोअर्स की जो टीचिंग्स थी उनको विकसित की गई। जो उन्होंने दिया था उनके जो फॉलोअर्स ने जो शिक्षाएं दी उनको डेवलप करने का काम चीन में किया गया। इसका दायरा अच्छे व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए था। अब सामाजिक मानक दिए गए चीनी राजनयिकों की सोच और संगठनों का आधार बने ये कन्फ्यूशियसवाद। इसका दायरा अच्छे व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का था। इसने चीनियों का जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों के नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीख कर वापस आए। 1890 के डिकेड्स में बड़ी तादाद में चाइनीज विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लेके आए बल्कि रिपब्लिक की स्थापना करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। क्योंकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती थी, एक ही तरीके से लिखी जाती थी। चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद लिए। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों को उलट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन पर, चीनी इलाकों पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था, के बाद सदियों पुरानी चीनी जो परीक्षा सिस्टम थी, जो एग्ज़ाम सिस्टम थी, को समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों के अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने में काम करती थी। माय डियर, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। Above all, felt that the traditionally way. Above all, many felt that traditional ways of thinking had to be changed. The Confucianism developed from the teaching of the Confucius and his disciples was concerned with good conduct, the practical wisdom, and the proper social relationship. It influenced the Chinese attitudes towards life, provided the social standard, and laid the basis of political theories and institutions. It was now seen as a major barrier to new ideas and institutions. To train people in modern subjects, students were sent to study in Japan, Britain, and France and bring back new ideas. Many Chinese students went to Japan in 1890s. They not only brought back new ideas, but many became leading the Republicans. The Chinese borrowed even Japanese translations of European words such as the justice, right, and revolutions because they used the same ideographic script. A reversal of the traditional relationship. In 1905, just after the Russo-Japanese War, a war fought on Chinese soil and over Chinese territory, the centuries-old Chinese examination system that gave the candidates entry into the elite ruling class was abolished. My dear, this type of change happened in China. इस तरह के बदलाव हुए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पैराग्राफ एंड आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। वी विल रिटर्न बैक माई नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड टेक केयर।